joining us earlier as well. Now, Congress leader Ajay Maken says Union Minister Gajendra Singh Shekhawat must resign. Listen in. जब गजेंद्र सिंह का नाम एफआईआर में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। Now, focusing on the national capital that woke up to a heavy downpour this morning. A person died while trying to maneuver his vehicle through a waterlogged bridge. A slum cluster was also washed away in Delhi's ITO area. Many low-lying areas in the national capital have been inundated. Chief Minister Arvind Kejriwal tweeted that the crisis has escalated as authorities were busy with COVID relief work. BJP has accused the state government of being ill-prepared. This is what Delhi government has done since last 6 years. In their promise to make Delhi like London and Paris, this is what they've made. And this is so unfortunate that every time you question them, they end up putting the blame on MCD or central government. What is their responsibility? What is the responsibility of CM? Just to come and do our shoots or do the press conferences? He has taken no responsibility for anything in the last 6 years. Situation has exactly been the same every monsoon. So he's got to take up the responsibility and stop doing his art shoot, which he's obsessed about, and start working for the people of Delhi because he still have another 4 years to go. सुबह जैसे ही तस्वीरें आई, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, माननीय उप मुख्यमंत्री जी खुद लगातार मिंटो ब्रिज की स्थिति पर नजरें बनाए हुए, उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, इंजीनियर्स के संपर्क में हैं, पंपिंग मशीन्स वहां भेज दी गई हैं और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट सूचना आई है कि मिंटो ब्रिज को साफ कर दिया गया है, वहां से सारा पानी पंप आउट कर दिया गया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महामारी के काल में भी जहां आम आदमी पार्टी काम में विश्वास रखने वाली पार्टी है, उस समय, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता उलझुल बयान दे रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी। मिंटो ब्रिज का जो एरिया है वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जहां सम्प वेल बना हुआ है और जहां पंप लगा हुआ है, उस सम्प वेल और पंप जो उन्होंने समय से चालू नहीं किया, अगर वो समय से चालू होता तो वहां पानी नहीं भरता। दिल्ली में दिल्ली सरकार इस समय नालों की सफाई और अपनी जितनी भी लाइन है उनको क्लियर करने की बात हमने पहले भी कही थी, जो उन्होंने समय से नहीं की। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है ना उसका कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पानी भरने की बात है, पानी हर साल बारिश होती है और सारी एजेंसियाँ, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, सारे मिलके पूरा प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान बनाते हैं। और मुख्यमंत्री जी खुद लगातार इन चीज़ों पर नजरानी रखे हुए हैं। उन्होंने जब फ्लड कंट्रोल ऑर्डर हुआ था उसकी भी पूरी बैठक की थी और भी जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनको सबको ठीक करा रहे हैं। Well, going across to Rupeshri Nanda, who joins us on the phone line. Rupeshri, both the Chief Minister and the Deputy Chief Minister have said that because the capital was so caught up in the fight against COVID-19, there were these lapses on this front. Yes, the initial response definitely does indicate that, the system was overwhelmed and almost stretched because of its attention to COVID-19 and containing that. Having said that, it is also true that what Deputy Chief Minister Manish Sisodia just said, that there is a flood control plan in place. And, when there were summers, the Delhi Jal Board also had formed a summer action plan. So those kinds of activities have been happening within the government. But clearly when a life has been lost simply due to waterlogging, that definitely gives a handle to the opposition to target the Aam Aadmi Party's government with. And that is exactly what the opposition and especially the BJP has done. The Kejriwal government now essentially has to ensure that such things do not happen again in Delhi.
considering that the attention that they have to give towards fighting COVID in the capital also will not be diminished. But having said that, definitely it is a cause for concern if a person loses his life just due to waterlogging, and that too in the national capital. Absolutely, Rupashri. Thank you for joining us with that update. At least 79 people have lost their lives in Assam due to severe flooding, and the situation continues to remain grim. Over 27 lakh people have been affected in 26 districts, and at least 47,000 people are in relief camps. The NDRF and the SDRF continue to aid relief and rescue operations. Large swathes of Kaziranga National Park, home to the one-horned rhino, continue to be inundated. Prime Minister Modi today spoke to the Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal and assured all support to the state in tackling the crisis. अभी जो हम लोग खड़े हैं यह असम के धुबरी जिले के पश्चिम असम के धुबरी जिले के यह हम फुलीमारी ग्राम पंचायत एरिया में खड़ा है, जहाँ पे आप देखिए जो घर है, अभी ये कोई रिवर के अंदर ये घर है नहीं, लेकिन अभी जो रास्ते हैं उसके ऊपर इतने सारे पानी आ गए हैं, जितने सारे लोग हैं सब घर पे अभी अटके हुए हैं ये लोग, और यहाँ से इनको थोड़ा बहुत जो रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया जो ज़्यादा दिक्कत में थे, लेकिन और जो लोग हैं इन लोगों को सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ रिलीफ वगैरह मुहैया किया जा रहा है। इनके खाने के लिए चावल दाल वगैरह दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। मेनली यहाँ का जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ के जो डोमेस्टिक एनिमल है उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, उसका खाने का दिक्कत है, और जो पीने का पानी के लोगों का जो पीने का पानी का बहुत सारी दिक्कत है। हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट की, और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में बांध के कारण अभी दिखा जा रहा है कि नौगांव की बोरकोला, सीख विलेज हो या दक्षिण पात, कामपुर, ये सब जगहों में दिखा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी हम कैमरा पर्सन हेमंत दिखा रहे हैं तस्वीरें जो जितने भी लोग हैं वो लोग आके अभी रिलीफ कैंप पे शेल्टर ले रहे हैं। और जो अभी दिखा जा रहा है कि कोपिली और निसारी नदी के कारण नौगांव जिले की बहुत सारी जगहों पे काम अभी देखा जा रहा है बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ है, किसानों की बहुत नुकसान है, किसानों के खेत की पूरी तरह से नुकसान हुआ है। और दिखा जा रहा है कि 2007 की बात, ये बहुत भयंकर बाढ़ आया है यहाँ पे। और असम की जो काजीरंगा हो, असम की अपर असम, लोअर असम और ये जो मिडिल असम, सभी जगहों में इस बार बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों की मौत हुए हैं। नौगांव में भी 3 बच्चों की मौत हुई है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीफ कैंप का व्यवस्था किया है, और रिलीफ कैंप में जो कोविड-19 का प्रिकॉशन का व्यवस्था किया गया है,